Hi dear students, today we are going to discuss those questions of limits what we have left last in our last lecture, lecture number 3. So we are going to cover all those important questions of class 11th chapter limits. Okay, so let's continue from the first one. So we are going to first discuss this question that we have a given a function f(x) in this form. Okay, and we have to find the we have to find the value of this constant a and b when we have a given this condition. Okay, so here what is the meaning of this condition? We have given that limit of fx at x is equal to 1 exists. So as per we have done that its limit will exist means what? Its left hand limit should be equal to right hand limit. So we are going to check this condition. By that we will come to our conclusion that we will find a and b. Okay. So first find the limit, left hand limit of this function. So what was the left hand limit? On this side we will find the left, and on this side we will find the right hand limit. So left hand limit was our limit s tending to 0 f of, because the limit we were finding the limit at x tending to 1. So here we will take left hand limit means what? If we have to find limit at 1, then left hand limit means we are approaching at 1 from the left side. That means what? That we will find limit at 1 minus h. So here I am taking 1 minus h. I have just described all these things in our lecture number 1 of limit. So I'm not going to tell you again it. So you have to go to lecture number 1 to see the things. So I'm finding directly the limit f of 1 minus h. And when f of 1 minus h is what? That means our x is less than 1. So this condition will satisfy. That means our function fx will be this one. So we will find the limit s tending to 0. Our function will be a plus ka b times of 1 minus h. Okay, as s tends to 0, this will go to 0. So what will we have? We have remaining is a plus ka b times of 1 minus 0, that means 1. It will be a plus ka b. So we have a left hand limit is this. Okay, so now let's find the right hand limit. So for finding the right hand limit, let me change the color. Okay, so right hand limit will be what? Right hand limit means what? We are approaching 1 from the right hand side. Okay, right hand side means what? 1 plus h. We are approaching from the 1 plus h side. So let's find its limit. So we'll use the formula limit s tending to 0 f of 1 plus h. So f of 1 plus h means what? 1 plus h is what? Greater than 1 value. So we will take this condition, that means this function this time. So just find limit s tending to 0. F will be what? B times of minus ka a times of 1 plus h this time. Okay, so as our s tends to 0, this h will go to 0. So where will our limit go? It will go to b minus a times of 1. So our limit is what? B minus a. Now we are going to use that concept of our first lecture, that limit will exist only when our left and right limit is equal. So we have to equalize these both things. And so that means here you have to write limit of f exists at x is equal to 1 when left hand limit is equal to right hand limit at 1. Okay, so what was our left hand limit? Left hand limit was a plus b. So we will put that a plus b should be equal to what? B minus a. Okay, b minus a. So here we have to write that b minus a. And you can observe that when they are equal, they should be equal to what? Our limit of fx at x tending to a 1. Okay, if as you know that जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती थी तो दोनों लिमिट जिसके इक्वल होते थे वही हमारे पास लिमिट की वैल्यू भी हो जाती थी. तो मतलब जो दोनों वैल्यूज लिमिट की आ रही हैं, अगर इक्वल है दोनों की दोनों वैल्यू, तो जो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करे उसके बराबर होंगी. बट हमें क्या दिया हुआ है? बट एज पर वी हैव गिवन दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू व्हाट? दिस लिमिट इज इक्वल टू f1. एंड व्हाट इज आवर f1? f1 is nothing but 4, because at x is equal to 1, f is 4. So we get that these all values, that means a plus b is 4, and also this value is 4, b minus a is 4. Okay, because this value is given to us that this is equal to f1 and f1 is 4. That's why they both will be equal to 4. So by calculating this, what we get? We get that a is equal to, or we can calculate that b is equal to 4 minus a. And from here you can calculate that b is equal to a plus ka 4, because when a will go to this side, we get a plus ka 4. Okay, now because they both are b should be equal, so we get that 4 minus a is equal to a plus ka 4. Okay,
So just take this 4 onto this side, this a onto this side. So what we get? We get 0 is equal to 2a. That implies what? That implies a is equal to 0. Okay. So we get a is equal to 0. And on the second condition, when we are a is equal to 0, what should be our b? So just in this equation, put value of a. Either you can put in this one equation, or you can also put in this equation the value of a. When you put the value of a is equal to 0, we get b is equal to 4. So these are the values of a and b for which this condition will be satisfied. Okay, this condition. So this is our first equation. That means we get a is equal to 0 and b is equal to 4 as its solution. So first question has been solved. Now let's move to the second question. Second question is that we have given that the limit of this function is going to pi as x is going to 1. Okay, so we have to find the limit of fx. That means this part only when x is going to 1. So for finding this limit, we are going to just remove, as you can observe, as x goes to 1, this denominator part goes to 0. That means some value in the numerator part and in the denominator part is 0, which is indeterminate form. Indeterminate form ना इसकी हमने पहले भी स्टडी की थी. बट एज वी हैव गिवन दैट कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को भी समहाउ हम डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम ऐसे सपोज करते हुए कि इसको डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम इस वैल्यू को नॉन जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी, ऊपर नीचे दोनों साइड इस जो लिमिट आई इसकी वैल्यू इधर भी दोनों साइड x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x-1, क्योंकि हमारे पास इसकी लिमिट इसके बराबर आ रही है, तो कोई भी आप वैल्यू अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की लिमिट तब भी सेम रहेगी. इसलिए मैं x-1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि नीचे से मैं जीरो को हटा पाऊँ. यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी नॉट -2 है, सॉरी जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड. सो हियर वी हैव, ओके, हियर वी हैव f of x minus का 2 close divided by, this is what, x square minus a square formula. So that can be written in the form of x minus a into x plus a. And on the right hand side जब हमने x minus a का multiply किया तो what we get, x minus 1 times of pi. Okay. Now you can observe that this will get cancelled out. As it gets cancelled out, just we have to do one thing, that we have to put the limit. Just put the limit x is going to 1. As x is going to 1, what we get? We get on the numerator part is limit x is going to 1 fx and minus का 2. In the denominator part, what we get? We get 2 because x is going to 1 and 1 plus 1 will be 2 is equal to, as x is going to 1 on this side, because we are again taking limit onto the both sides. Okay. So as we take limit onto this side, what we get? This is going to 0, so we will get 0 into pi. So this will go to 0. So as this side, right hand side goes to 0, and we will multiply this onto the right hand side. So what we have? We have limit fx x tending to 1 minus 2 is equal to 0. So now you can take this 2 which is on the left hand side onto the right hand side. So as this goes to right hand side, we get the value of limit of fx is equal to 2 as x is going to 1. So this is our solution of this part. That means the limit of this function. Okay. So we have done the second question also. Let's move to the third question. For moving to the third question, I'm going to use the pen. Okay. So let me use the pen. Okay. Now let's observe. In this question, हमें क्या करना है, m and n फाइंड करना है सच दैट कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. अब फिर से रिकॉल करो, लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों सेम आनी चाहिए. अगर हम लिमिट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो पहले हम इसकी एग्जिस्टेंस की बात करेंगे. इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे बात हो रही है, जीरो पे बात हो रही है. तो हम जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट. तो देखो मैं दोनों ही निकालने जा रहा हूँ. तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं जीरो पे निकाल रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली फॉर्मुला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है पहले ही. तो आप पिछले मतलब जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं. यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. यहाँ पे क्या करते थे, h को जीरो पे ले जाते थे, क्योंकि हम जीरो पे लिमिट निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ जीरो माइनस का h, और इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट h इज गोइंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h. ओके. सो हियर वी हैव जीरो माइनस h व्हाट, नेगेटिव. एंड वेयर इज आवर नेगेटिव कंडीशन, दिस कंडीशन नेगेटिव, x is less than 0, and in this case x is less than 0. We will assume this function for this f. Okay. तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को assume करेंगे. तो हमारे पास क्या मिला, देखो, लिमिट h is going to 0. तो माइनस एच है अंत हमारे पास फंक्शन के. तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे माइनस एच रखेंगे. तो यहाँ पे जाएगा m टाइम्स ऑफ माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पे होगा प्लस का m. ओके. एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, तो जीरो प्लस एच है, ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि हमने जब भी h को यूज किया हमने कहा था क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू विच इज ग्रेटर देन जीरो. तो यहाँ पे h क्या है, ग्रेटर देन जीरो है. तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो से बड़ा वाला कंडीशन कौन सा नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है.
तो हम इस वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे, आई मीन फॉर द राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इस वाले फंक्शन को यहाँ पे क्या आएगा एन एक्स, एक्स की जगह एच आएगा, हम सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एन एच प्लस का एम। सो जस्ट सॉल्व करो लिमिट, जैसे आप एच को 0 पे ले जाओगे यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू 0 पे जाएगी तो बचेगा क्या यहाँ पे एम इंटू 0 प्लस का एन बचेगा। एक तो वैल्यू 0 हो गई तो बचा क्या आपका एन बच गया लेफ्ट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में देखो क्या बनेगा, जैसे एच को 0 पे ले जाओगे वैल्यू 0 पे जाएगी, आपके पास क्या बचेगा एन इंटू 0 प्लस का एम, तो आपके पास क्या बच गया एम बच गया। तो देखो मैंने क्या कहा था, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमसे एग्जिस्टेंस की बात की गई है, जब दोनों वैल्यू बराबर होगी। दैट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे पहले केस में लिमिट एफ एक्स x is going to 0 exists if left hand limit is equal to right hand limit at x is equal to 0. that implies, because हमने क्या किया था, हमने पिछले बैक स्लाइड में क्या किया था, हमने 0 पे ही तो कैलकुलेट की थी ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सॉरी यहाँ पे देखो 0 पे कैलकुलेट की थी। इसका मतलब क्या हुआ एन एम के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एन आई थी, राइट हैंड लिमिट एम आई थी। तो हमें पहली कंडीशन क्या मिल गई कि हमारे पास n और m जब हमारे पास दोनों के दोनों इक्वल इंटीजर्स होंगे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पहला काम कर लिया अपना, पहला हमारा पार्ट निकल गया। अब दूसरे पार्ट पे भी वर्क करना है कि एफ एक्स की लिमिट 1 पे कब एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए 1 पे देखते हैं सेम तरीके से हम। तो 1 पे देखने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट 1 पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, इसकी भी और राइट हैंड लिमिट की भी एट 1 पे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो लेफ्ट वही सेम फार्मूला एज इट इज। तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट एक्स, यहाँ पे एच लेते हैं, सॉरी बार बार एक्स लिखता हूँ मैं। एफ ऑफ 1 पे निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एच, और इसमें राइट हैंड लिमिट है तो राइट लिमिट में क्या करते थे एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 पे निकल रहा है तो 1 प्लस एच, ठीक है। अब चलो देखो 1 माइनस एच क्या होगा लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 वाली कंडीशन कहाँ पे आ रही है हमारे पास, जस्ट ऑब्जर्व वगैरह। तो लेफ्ट लेस देन 1 वाली कंडीशन कहाँ पे थे, इस वाली में आ रही है लेस देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन। तो लेस देन 1 के लिए हम ए वाला फंक्शन लेंगे एन एक्स प्लस का एम। तो यहाँ पे आप फंक्शन रखो एन एक्स प्लस का एम। तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसकी जगह एन एक्स प्लस का 1 लेना था तो एन टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच टाइम्स ऑफ प्लस का एम हो गया पहला फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन 1 वाली कंडीशन थी। अब ग्रेटर देन 1 के लिए देखो फंक्शन क्या बन रहा है हमारे पास, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन बन रहा है एन एक्स क्यूब प्लस का एम। तो ये वाली कंडीशन ले लो इसके लिए, एन एक्स का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या 1 प्लस एच अपने पास, ठीक है, क्यूब प्लस का एम। और लिमिट तो हमें 0 पे ही निकाली है ना, लिमिट आई थिंक थोड़ा सा कलर दोनों का अलग करना चाहिए तो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब जैसे 0 पे ले जाओगे तो क्या होगा 0 पे ले जाओगे ये वाली वैल्यू 0 पे जाएगी, जैसे आपकी वाली वैल्यू 0 हो गई तो क्या आ गया आपका n टाइम्स ऑफ 1 प्लस का m। तो वैल्यू कहाँ चली गई n प्लस m पे चली गई, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इस स्लाइड में अगर आप देखो, इस स्लाइड में राइट हैंड साइड में जो हमने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रही थी जैसे हम, तो यहाँ पे पहले अगर आप अगर देखो कुछ क्लासेस में क्या होता है टीचर्स आपको इसको एक्सपेंड करके बताते हैं, ठीक है, बट मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक्सपेंड करके भी आप इसकी लिमिट निकालोगे तब भी वही आएगी जब डायरेक्टली भी निकालोगे आप, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है एक्चुअली में, ऐसा इसलिए होता है एक्चुअली में लिखा है तो क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन बन रहा है, ठीक है। जब कंटिन्यूस फंक्शन होता है हमारे पास किसी भी मतलब ब्रैकेट के या क्यूब के अंदर या किसी के भी अंदर, तो डायरेक्टली हम लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली अंदर लिमिट पुट कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो एन टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जैसे एच 0 पे जा रही है वाली वैल्यू 0 पे चलेगी, यहाँ पे बचेगा 1 टाइम्स ऑफ प्लस का एम। तो आपकी वैल्यू क्या मिल गई एन प्लस एम मिल गई। तो इसके में आप देख सकते हो एन प्लस एम इसमें भी आ रहा है लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी। तो आपका जो हम अगर इस डिस्टेंस की इसकी बात देखें तो हम क्या कहेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 exists. That means what? That means left hand limit should be equal to right hand limit at x is equal to 1. और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एक इंटीजर के लिए दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी n प्लस m आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी n प्लस m आ रहे हैं। दैट मीन्स n प्लस m is equal to n plus m, which is holding for every integer. That means it holds for all integer, okay? बट हमारा रियल क्वेश्चन क्या था, हमारा रियल क्वेश्चन पे चलो जरा, रियल क्वेश्चन क्या था कि ऐसे m एंड n की वैल्यूज फाइंड करो जहाँ पे दोनों की दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट करे। तो दोनों कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, देखो ये वाली कब एग्जिस्ट कर रही थी जब n m के बराबर था ना, और दूसरी वाली कंडीशन कब एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली तो हमेशा एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, दोनों कहीं पे अभी एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास n और m बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर n और m बराबर होगा तो ये वाली एग्जिस्ट करेगी, और ये वाली तो वैसे ही कर रही थी हमेशा, तो ये वाली भी कर जाएगी। इसलिए आपका मेन जो सोल्यूशन आ जाएगा, मेन सोल्यूशन आप लिखोगे for all integer n and m such that n is equal to m, ठीक है। जैसे n बराबर m होगा बोथ लिमिट एग्जिस्ट लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों की दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया लेक्चर।
और इसी के साथ आपका 11th क्लास का ये जो लिमिट्स का चैप्टर था, ये भी इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए। इफ़ यू फील की दैट इसमें भी कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेफ्ट रह गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा एक और लेक्चर लूँगा मैं लिमिट के ऊपर, एल हॉपिटल बताने के लिए आपको, क्योंकि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो एल हॉपिटल बहुत ही यूजफुल होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लेक्चर और लूँगा लिमिट पे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द डिफरेंशियबिलिटी। That's all. Not differentiability, sorry, continuity. That's all for today. Have a good day. Bye bye.